یہ بات ہے ایئر 2006 کی، جب دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے ہمارے ایٹماسفیئر میں ایک زہریلی گیس کو ڈیٹیکٹ کیا، میتھین گیس۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ایٹماسفیئر میں اچانک سے میتھین گیس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میتھین ایک قسم کی نیچرل گیس ہوتی ہے جو اگر ایٹماسفیئر میں چھوڑ دی جائے تو وہ زمین کو گرم کرتی ہے۔ جیسے سردیوں میں ہم خود کو گرم رکھنے کے لیے اوپر کمبل اوڑھتے ہیں، اسی طرح یہ گیس بھی زمین کے گرد ایک کمبل کی طرح کام کرتی ہے۔ اندر کی گرمائش اندر ہی رہتی ہے اور زمین کو اور زیادہ گرم کرتی ہے۔ میتھین گیس عام کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی زیادہ گرم کرنے کا کام کرتی ہے۔ 2006 میں جب یہ اچانک بڑھنے لگی تو سائنٹسٹ نے سمجھا کہ شاید یہ انسانوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی پالوشن سے بڑھ رہی ہے، لیکن جانچ کرنے پر جو معلوم پڑا وہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو ہماری زمین اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ میتھین گیس آخر پیدا کیسے ہوئی اور اس کی مقدار لگاتار بڑھ کیوں رہی ہے؟ سائنٹیفک کمیونٹی کس طریقے سے میتھین گیس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ میتھین گیس دنیا کے ختم ہونے کی نشانی ہے یا پھر کسی بہت بڑے کلائمیٹ شفٹ کا اشارہ؟ سائنٹیفک کمیونٹی یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ ایٹماسفیئر میں میتھین کا اسپائک عام طور پر ہر 1 لاکھ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ معلومات ایسے پتہ چلتی ہے کہ انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ جیسے برفانی علاقوں میں ڈرلنگ کر کے برف نکالی جاتی ہے، جسے آئس کور کہتے ہیں۔ مان لیں کہ ہر سال انٹارکٹیکا میں 1 میٹر برف پڑتی ہے۔ اس برف میں ایٹماسفیئر کی ہوا بھی ٹریپ ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے سال اس کے اوپر نئی برف کی لیئر آ جاتی ہے۔ جب گہری ڈرلنگ کر کے آئس کور نکالا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر کسی ٹائم مشین کی طرح ہزاروں لاکھوں سال پرانے ایٹماسفیئر کا ریکارڈ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سی صدی میں ایٹماسفیئر میں کون سی گیسز تھیں اور کتنی مقدار میں تھیں۔ اسی طریقے سے سائنٹیفک کمیونٹی نے پتہ لگایا کہ ارتھ کی ہسٹری میں ہر 1 لاکھ سالوں کے بیچ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب ایٹماسفیئر میں میتھین گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آئس ایج ختم ہو رہی ہے اور اب ارتھ دوبارہ گرم ہونا شروع ہوگا۔ جب آئس ایج ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو صرف 20-30 سالوں میں ہی کافی ساری برف پگھل کر ارتھ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے آج کا موسم ہے۔ پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میتھین کے ایسے لیولز 12,000 سال پہلے ریکارڈ ہوئے تھے، جس کے بعد آئس ایج ختم ہونا شروع ہوئی تھی۔ تو اب اتنی جلدی میتھین ایٹماسفیئر میں پھر سے کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری زمین کسی بڑے بدلاؤ کی طرف بڑھ رہی ہے یا پھر یہ کوئی نیا خطرہ ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ ہم اس وقت ارتھ کے ایک ایسے دور میں ہیں جسے کوئٹرنری پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ پیریڈ آج سے قریب 25 لاکھ سال پہلے شروع ہوا تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ اس کوئٹرنری پیریڈ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تھا پلیسٹوسین ایپوک، جو قریب 25 لاکھ سال پہلے سے شروع ہو کر 12,000 سال پہلے تک چلتا رہا۔ اس دور میں زمین پر بار بار آئس ایجز آتی رہی، جس میں زمین کا بہت بڑا حصہ برف سے ڈھک جاتا، پھر ہزاروں سالوں بعد برف پگھلتی اور زیادہ تر زمین خشک ہو جاتی، پھر برف آتی، اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں انسان بھی آگے بڑھے، اور اسی دور میں بڑے بڑے جانور جیسا کہ میمتھ بھی ختم ہو گئے۔ اور پھر آیا کوئٹرنری پیریڈ کا دوسرا حصہ جسے ہیلوسین ایپوک کہتے ہیں۔ یہ قریب 12,000 سال پہلے شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ اس دور میں برف کافی کم ہو گئی اور زمین کا موسم کافی اسٹیبل اور گرم ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے ہم انسانوں نے کھیتی باڑی کرنا سیکھا، گلیشیئرز پگھلنے سے فریش واٹر کے ریسورسز پیدا ہوئے، اور انسانوں نے پانی کے قریب گاؤں بسانا شروع کیے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہے۔ ہم ہیلوسین میں ہیں جو کہ ایک گرم دور ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم ابھی تک آئس ایج میں ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی زمین کے پولز پر برف موجود ہے، بس وہ گلیشیئرز اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے وہ آئس ایج کی پیک پر ہوا کرتے تھے۔ جب پولز پر بالکل بھی برف نہ ہو تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئس ایج ختم ہو گئی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو زمین کو گرم کرتی ہے اور آئس ایج کو ختم کرتی ہے؟
साइंटिफिक कम्युनिटी ने 3 बड़ी चीजें पता की हैं जिन्हें मिलेंकोविच साइकिल्स कहते हैं। पहली चीज है एसेंट्रिसिटी, यानी जमीन सूरज के गिर्द गोल रास्ते पर घूमती है, लेकिन कभी कभी ये रास्ता यानी उसका ऑर्बिट थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाता है, और इस ओवल शेप में जब अर्थ इस पॉइंट पर आता है तो सूरज से मिलने वाली गर्मी बढ़ जाती है। ये एसेंट्रिसिटी साइकिल करीब 1 लाख सालों तक होता है। इन 1 लाख सालों में ऑर्बिट गोल से ओवल और फिर दोबारा गोल हो जाता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि असल में आइस एज को खत्म करने के पीछे सिर्फ एसेंट्रिसिटी साइकिल ही नहीं बल्कि एक्सियल टिल्ट का भी बड़ा रोल है। यानी हमारा अर्थ जब सूरज के गिर्द घूमता है तो वो थोड़ा झुका हुआ होता है, करीब 23.5 डिग्रीज के एंगल पर। लेकिन ये झुकाव भी वक्त के साथ थोड़ा बदलता रहता है। जब जमीन ज्यादा झुकी होती है तो पोल्स पर गर्मियों में ज्यादा शुआएं पड़ती हैं और वहां की बर्फ तेजी से पिघलती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये साइकिल भी 41,000 ईयर्स का होता है, जिसमें जमीन 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्रीज के एंगल पर झुकने का अमल करती है। और तीसरी चीज है प्रिसिशन, यानी एक्सिस का हिलना। जमीन का एक्सिस थोड़ा हिलता भी है, जैसे एक लट्टू हिलता है। इसकी वजह से मौसम का टाइमिंग बदल जाता है। ये साइकिल भी करीब 19,000 सालों से 23,000 सालों का होता है। ये तीनों चीजें एसेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट और प्रिसेशन मिलकर जमीन को गर्म करने का एक साइकिल शुरू करती है। बर्फ क्योंकि सूरज की मैक्सिमम रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जब सफेद बर्फ पिघलती है तो उसके नीचे की जमीन या समंदर सूरज की रोशनी के लिए एक्सपोज हो जाता है, और उसका रंग सफेद नहीं बल्कि डार्क होता है, जैसा कि मिट्टी का कलर या ओशन के पानी का डार्क ब्लू कलर। और ये बात तो सभी जानते हैं कि डार्क कलर्स सूरज की रोशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है। जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है तो ज्यादा बर्फ पिघलती है और ये साइकिल चलता रहता है। पर अर्थ तब मजीद गर्म होना शुरू होता है जब गर्मी की वजह से जमीन में छुपी हुई गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू होती हैं। ये गैसेस समंदरों में या जमीन के अंदर जमी हुई बर्फ, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, में कैद होती हैं। इन गैसेस के निकलने से जमीन और ज्यादा गर्म होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक ही था तो 2006 में मीथेन में इतना बड़ा इजाफा क्यों देखा गया, जबकि आइस एज खत्म होने वाला इवेंट तो अभी 12,000 साल पहले ही हुआ था, ना कि 1 लाख साल पहले जैसे आम तौर पर होता रहा है। 1900s में जब नेचुरल गैस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी तो इंसानों की वजह से मीथेन इमिशंस भी काफी बढ़ गए, लेकिन 1990 तक वो एक पॉइंट पर आकर रुक गए। तो फिर 2006 में ये नया स्पाइक आखिर आया कहां से? मीथेन एक ऐसी गैस है जो सिर्फ इंसानों की वजह से ही नहीं बल्कि कुदरती तौर पे भी बनती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जमीन के अंदर छुपी हुई गैसेस ये गीली जमीन में और समंदरों में कैद होती है, और बर्फ का पिघलना इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि ये गैसेस कहां से निकल रही हैं। इसमें सैटेलाइट से एक खास वेवलेंथ की लेजर बीम जमीन पर भेजी जाती है। ये वेवलेंथ सिर्फ मीथेन गैस ही एब्जॉर्ब कर सकती है, और जिन पॉइंट्स पर ये लेजर लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट तक नहीं पहुंचती, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मीथेन गैस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में मीथेन का एक मैप बनाया है। इसी टेक्नोलॉजी से नासा की टीम्स ने ईरान में एक बड़े कूड़े के ढेर के ऊपर 3 मील लंबा मीथेन का बादल मैप किया है। ये हर साल हवा में 73,440 टन मीथेन गैस छोड़ रहा है, यानी जितना वजन 180 बोइंग के जंबो जेट्स का होता है। और अगर घंटों का हिसाब लगाया जाए तो हर घंटे में 8,500 kg। लेकिन इससे भी ज्यादा मीथेन तुर्कमेनिस्तान से निकल रही है। यहाँ ऑयल और गैस निकलने वाली जगहों पर 12 ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जहाँ से हर घंटे तकरीबन 40,000 kg मीथेन एटमॉस्फेयर में फैल रही है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि 2006 के बाद मीथेन का स्पाइक सिर्फ इसी वजह से नहीं है। ये तो उसका आधा हिस्सा भी नहीं।
बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात में से रिलीज हो रहा है, खास तौर पर वो जंगलात जो पहले परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद थे। अब क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है तो जमीन के अंदर फॉसिल्स तेजी से डीकम्पोज होकर मीथेन गैस छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का स्पाइक देखा जा रहा है। मीथेन गैस का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये हवा में शामिल हो गई तो फिर इसे कलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। लैंडफिल्स में या गैस फील्ड्स में मीथेन गैस को कलेक्ट करना काफी आसान होता है, लेकिन जंगलात में से निकलने वाली गैस को कलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इवन कई मॉडर्न लैंडफिल्स में से मीथेन गैस को कलेक्ट करके उसे एनर्जी जनरेशन के काम में लाया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो खतरनाक तो जरूर है लेकिन मीथेन से कम। एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस 10 सालों तक रह सकती है और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदल जाती है। अब मसला ये है कि बेशक अर्थ में पहले भी ऐसे मीथेन लेवल्स डिटेक्ट किए गए हैं, जैसा कि 12,000 साल पहले, लेकिन जब भी जमीन ने इतनी ज्यादा मीथेन रिलीज की है तो वो आइस एज के खत्म होने का वक्त था। और इस वक्त जब ग्लेशियर्स पहले ही काफी हद तक पिघल चुके हैं, इस टाइम पर मीथेन के ऐसे लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए, और शायद ये इशारा है कि अब अर्थ किसी दूसरे फेज में जाने वाला है। पर सच पूछा जाए तो इस बारे में ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि क्या अब आइस एज मुकम्मल तौर पर खत्म होगी या फिर हम एक नई आइस एज में जाने वाले हैं, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी के पास अर्थ की हिस्ट्री में कोई ऐसा खास रेफरेंस पॉइंट नहीं है जो ये जाहिर करे कि 12,000 सालों के बाद दोबारा मीथेन के लेवल्स इतने हद तक बढ़ गए हो। और हमें ये भी नहीं पता कि ये लेवल्स बढ़कर कहाँ तक जाएंगे, और अगर ये वाकई इंसानों की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर हो रहा है तो फिर इसे रोकना नामुमकिन है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।